my dear student of Standard 7th. Welcome to you once again. And today we are continue with our chapter number 2, and this is the third part. Well, the name of the chapter is India's Climate and Natural Resources. This is part 3, and after this, we are going for the last part. But friend, before going for the last part, let me share you few things. Uh, as usually people are complaining that they are having acidity, they are having gas problem. Well, after watching so many years of the cases, the doctor concluded that uh, in, if we are taking food and there is a lots of digestion issues are there, due to it such kind of problem arises. So what is the solution? Well, the solution is very simple. There are three categories of people. Okay, first, those who are eating very fast. Second category, they are eating in a medium mode. And third category, they are eating very slowly. So friends, third category, they don't it is conclude from the observation that these people are not having that much of issues. Second category, they are having issues but not like the quick eating. And the quick eaters, they are having the major issues of such kind of problems. So friends, there is a golden rule: chew your food as much as possible. मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट सिंपल टर्म्स, अपने खाने को जितना हो सके ना आराम से चबा चबा के खाना चाहिए. देयर इज़ ए रूल ऑफ 32 जो आपको ये कहता है कि आप अपने खाने को जितना अच्छे से चबा के खाओगे, द मोर आप उसको क्रश करोगे अपने दांतों से, उतना ही आपके पेट के लिए ईजी हो जाएगा. ओके, एंड आपको बस और हेल्दी रहना है, देन यू शुड स्टॉप टेकिंग शुगर, मैदा एंड सॉल्ट वी कांट हम बंद नहीं कर सकते बट एटलीस्ट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड ट्राई दिस फॉर अ वीक एंड यू विल फील मोर हेल्थी. Okay, so today's session, let us start from the land resources. The large area covered chiefly with numerous trees and undergrowth with the forest is called a forest. So a large part of area where trees are growth, such kind of places is called forest. But let me tell you, these trees are not growing by the humans. They are just growing naturally. अगर उसे इंसानों ने ग्रो किया होता तो आई थिंक वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है. इंसान कोई भी चीज़ अगर ग्रो करता है ना तो उसके पीछे उसका मोटिव होता है. फॉर एग्जांपल पैसे कमाना. ज़्यादातर देर आर ओनली फ्यू रेयर केसेस जहाँ पर वो नेचर को कुछ ध्यान में रख के करता है. सेकेंड लाइन, फॉरेस्ट आर द इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफी and climate, there are 5,000 types of trees in India. India ranked 10th in the world in terms of the availability of the variety of vegetation. Since ancient time, India is known for the medical herbs. There is mentioned almost 2,000 varieties of herbs and trees in Ayurveda. So, they are talking about कि जो फॉरेस्ट है वो किसी भी देश के लिए उसका वेल्थ होता है. इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिजियोग्राफी और क्लाइमेट आपको देखने को मिलेंगे. अगर हम बात करें इंडिया में तो 5,000 टाइप्स के ट्रीज हैं. ओके, एंड इसमें भी इंडिया का 10th नंबर आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट इंडिया जो है ना वो अपने प्लांट्स की मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है. से फॉर एग्जांपल अभी मुझे थोड़ा सा माइनर सा जुकाम है. अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम शूटिंग दिस वीडियो. आई विल गो आफ्टर completion ऑफ दिस वीडियो, आई विल गो एंड टेक सम हॉट वाटर एंड आई थिंक 2 दिन ये करना है एंड डेट्स इट. इस बीच मुझे कुछ एंड मेक श्योर कि मैं कुछ फ्रिज वाली चीज़ ना लूँ, आइसक्रीम ना खाऊँ, कोल्ड ड्रिंक्स ना पीऊँ.
तो आई विल एज फिट एज नॉर्मली। सो इंडिया का 10th नंबर आता है वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया की जो चीज़ें होती है वो मेडिसिन के रूप में आती है। अदरक हो गया, फिर तुलसी हो गई, ठीक है। देर आर मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 वेराइटीज ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन द आयुर्वेदा। अगर हम आयुर्वेद की बात करें 2000 वेराइटीज ऑफ हर्ब्स उसमें लिखी गई है। देर इज ए बुक जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, evergreen forests are found in the northeastern part and mountainous region and Andaman Nicobar Islands. So remember northeastern state, mountainous region and Andaman Nicobar, where you will find this place. ठीक है, this is Andaman Island, this is North Indian mountain, sorry this is northeastern एंड दिस इज नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये जो एरिया बताया गया है यहाँ पे है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पर ट्री हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ, एवरग्रीन आर सो नेम्ड सो as there is no particular season for a tree to shed leaves. Therefore, these forests remain green throughout the year. These trees are usually 30 to 35 meter height, and baboon, teak, sal, mahogany, sesame are the main trees. So usually क्या होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप कहीं भी एंटर करो ना तो आपको पूरा जंगल सुनसान नहीं मिलेगा। मतलब ट्रीज नो डाउट अपना लीव शेड करती हैं, लेकिन उन सबके अलग अलग सीजन होते हैं। देर आर सर्टेन पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि ट्री ने अपने सारे ब्रांचेस लीव कर दिए और फिर नए ब्रांचेस आते हैं, वो उनका पर्टिकुलर सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है, सॉरी फॉर डैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेसिडियस फॉरेस्ट। Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain ranges, Satpura ranges, and the foothill of the Himalayas. The foothills of the eastern and the western Ghats of India. The main trees of these forests are teak, sal, mahuda, banyan, and peepal. These trees shed their leaves in the autumn. Talking about now deciduous forest. यहाँ पे कंपेयरिंग टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया थोड़ी कम बरसात होती है। ओके, विंध्याचल माउंटेन्स यू विल फाइंड इन द सेंटर इंडिया, सतपुड़ा रेंजेस गुजरात साइड में आएगा, एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जहाँ पे मतलब हिमालय माउंटेन्स ख़त्म होते हैं। फुट हिल ऑफ द ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है। एंड वेस्टर्न घाट, लेट मी रिमाइंड यू कहाँ पर वेस्टर्न घाट है। See, this area is called Western Ghat. Okay, this is the Vindhyachal. This is Satpura ranges. Okay, and in northeastern foothills means this part. So they are talking about this. Okay, now we are going for the tidal or the called mangrove forest. सी फ्रेंड्स, टाइडल फ्रेंड्स और मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर यूजुअली आपकी जो रिवर्स हैं वो आके समुद्र में मर्ज अप हो जाती है। तो टाइडल फॉरेस्ट है द पर्टिकुलर क्वालिटी जहाँ पर वो लोग फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। टाइडल और द मैनग्रोव फॉरेस्ट आर द मोर लग्जरियंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ अ लार्ज रिवर, एज आई सेड यू कि रिवर के एरिया में होती है। एनी स्ट्रेटेड बे वेयर एनुअल रेनफॉल इज हाई, एंड यूजुअली इन जगहों पर क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। इन इंडियन टाइडल और द मैनग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड ऑन द गिगेंटिक डेल्टा एंड इन द कोस्टल वेस्टर्न बंगाल कॉल्ड द सुंदरबन मैनग्रोव। अच्छा, कि ये सुंदरबन और मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? लेट मी रिमाइंड यू,
थोड़ा सा मुझे और जूम करना पड़ेगा। ओके, एंड नाउ सी, गंगा रिवर जो यहाँ से फ्लो होके आती है समथिंग लाइक दिस, फिर एक बांग्लादेश में चली जाती है। नाउ यू सी दिस पैचेस, जब नदी समुद्र में मर्ज होने आती है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा जो जंगल है उसको हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, उसको सुंदरबन भी कहा जाता है। रीज़न, वहाँ पे सुंदरी नाम का एक ट्री ग्रो होता है जो यूजुअली बोट्स बनाने के काम में आती है। सो इंडिया का जब उन्होंने सर्कल किया वो पार्ट को सुंदरबन और मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। पीपल माइट थिंकिंग कि बांग्लादेश के ऊपर भी सर आपने क्यों किया हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में भी सुंदरबन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Exactly below my image, coniferous forests are found in the mountainous region of the Himalayas. Deodar, pine, spruce, birch tree grown in this region. अब एक सेकेंड है, आप में से बहुत सारे लोगों ने माइट भी बचपन में वो क्रिसमस ट्री ड्रॉ किया होगा, समथिंग लाइक दैट। ऊपर स्टार होता है, फिर यूं ट्री होता है, फिर अगेन आप उसको यूं करते हो, देन अगेन आज पता नहीं बट मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा हो रहा है, और नीचे आप इस तरह से ट्री ग्रो करते हो। ठीक है, जो यू विल फाइंड ये था कॉनिकल शेप में, एंड यही टाइप के ट्रीज आपको यूजुअली कनिफरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, हिमालय माउंटेन्स के आसपास में ये पाए जाते हैं। एंड यूजुअली ये इसका शेप यूँ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है, एंड जब स्नोफॉल होती है ऊपर से तो वो स्कीड करके नीचे आए। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्नो गिरी तो वो फटाक लेके नीचे की तरफ जाएगी और गिर जाएगी। तो ट्री अपने ऊपर कभी भी स्नो जमा नहीं होने देता है, एंड स्नो की वजह से ही उनका शेप इस टाइप का होता है। आई होप आपको मेरा ड्राइंग समझ में आ गया होगा। एनी हाउ, द थ्रोनी फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, राजस्थान एंड द वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। ट्री लाइक स्पर्स अकेसिया। अब ये कहाँ पर है मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। सी, ये जो एरिया है ना, ये है थ्रोनी फॉरेस्ट वाला एरिया। मीन्स यहाँ पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर यूजुअली बरसात बहुत कम होती है, तो यहाँ पे अकेसिया, स्पर्स, इस टाइप के ट्रीज आपने को देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अकेसिया जिसको हम लोग कैक्टस कहते हैं, एंड कैपर आर फाउंड हियर। सो पेज नंबर 12 इज ओवर। नाउ लेट अस मूव टू द पेज नंबर 13। सो यू आर सपोज टू फोकस ऑन द लेटर पार्ट, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट बताया गया है। फॉरेस्ट इतने ज़रूरी क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सी, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन लाइफ ऑफ मैन एंड दे प्रोवाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। फॉरेस्ट इंसान की लाइफ में बहुत काम के रहे, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो यूजुअली फॉरेस्ट से ही आई है। फॉरेस्ट हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है। मीन्स जो चीज़ हम लोग नेचर में से डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो प्राइमरी होती है, और जो चीज़ हम नेचर की इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं डेट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी। से फॉर एग्जांपल मेरे गांव में शुगर केन के खेत हैं, मैंने वो गन्ना निकाला और उसको मैंने अपने मतलब खाने के लिए यूज़ किया, कंज्यूम किया, उसको वहाँ ही छील के खाने लग गया, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी। एंड अगर मैं उसको फिर मार्केट में बेच देता हूँ, मार्केट में वो लोग शुगर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे। अब मैं वो गुड़ कंज्यूम कर रहा हूँ, डेट मीन्स मैं शुगर केन ही कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रिफाइंड होने के बाद, तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेल्स। इससे हमको पैसे तो मिलते हैं, इकोनॉमिकली तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ही, प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, हवा पानी साफ होगा एंड ऑल दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस 3 पॉइंट्स,
फर्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ boats and steamers are made of the wood of the Sundari of the Sundarban forest. As I already told you कि सुंदरबन का जो फॉरेस्ट होता है उसमें जो ट्री होती है सुंदरी, वो बोट्स बनाने के काम में आती है. एंड ऑफकोर्स स्टीमर्स जो बोट का एडवांस वर्जन है. बास्केट, मैट, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम द बैम्बू. तो बम्बू की एक पेड़ होता है एंड उसमें से हम लोग बास्केट बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं एंड इवन फर्नीचर तक भी बनाते हैं. ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने बास्केट बहुत कुछ कर लिया था. नाउ ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम द पाम एंड द डेड लीव्स वाइल कैचू इज मेड ऑफ द कैचुआ ट्री. ओके, सो ये कुछ और चीज़ें हैं जो बनती हैं. पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम द डिओडर ट्री. टर्पनटाइल इज मेड फ्रॉम द चेड ट्री. बॉक्सेस, मैस्टिक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, artificial fiber filaments are also made from the deodar and shade tree. So these are the items which are basically prepared from the shade and the deodar tree. And the last point, sealing wax is used for making varnish ink for printing material and electronic devices and gramophone. तो जो सीलिंग वैक्स आता है, एक तरह का वैक्स आता है जो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक प्रिंटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया एंड स्पेशली ग्रामाफोन. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट. नाउ व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल कम होते जा रहे हैं एंड हमको इन्हें बचाना है. एंड जब हम उनको किसी भी चीज़ को हम लोग जब सेव करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, देन हम उसको कंजर्वेशन कहेंगे. टॉकिंग अबाउट मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट. क्या किया गया हम लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए? सो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट. कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज फॉरबिडन. सीवियर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट द ट्रीज इलीगली. पहली बात तो पेड़ों को काटना हमने बंद कर दिया, और जो लोग पेड़ों को इलीगली काटते हैं उनके खिलाफ हमने सीरियस एक्शन लेने स्टार्ट किए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए. ट्री शुड बी ग्रोन ऑन द वेस्ट लैंड एंड द पीपल शुड मोटिवेटेड टूवर्ड द अफॉरेस्टेशन. तो ट्रीज को ऐसी जगह पे ग्रो करना चाहिए जहाँ पे ज़मीन कोई काम की ना हो. सी फॉर एग्जांपल आपके रोड्स के साइड में जो जगह होती है, रेलवे ट्रैक्स के बाजू में जो जगह होती है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारी ट्रीज ग्रो कर सकते हैं. एंड लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ लगाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है. अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में जंगल बर्बाद होते हैं, लेकिन अफॉरेस्टेशन में जंगल बनाए जाते हैं जहाँ पे नए नए ट्री ग्रो किए जाते हैं. ओके, सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड मोर. तो ये सब जो हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमको इन सब से फुलफिल करनी चाहिए. आगे बढ़ते हुए, पीपल शुड बी मेड अलर्ट अवेयर अबाउट द अफॉरेस्टेशन एंड नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड. तो लोगों को अफॉरेस्टेशन के मीनिंग्स जो अच्छी साइड है वो बताए जाएं. उनको बताना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या क्या हो सकता है, तो इससे वो लोग अवेयर होंगे और फिर वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएँ. More forest research institute should be established to develop the forest scientifically. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेस्ट पर बहुत सारा रिसर्च वर्क करती है. ओके, जैसे हमको बीमारियाँ लगती है ना, सेम वे प्लांट्स को भी बीमारियाँ लगती हैं. ओके, ये हम सबको, कॉमन लोगों को नहीं बताया जाता है क्योंकि इसके लिए अलग से एक रिसर्च डिपार्टमेंट है एंड वो उसको दूर भी करते हैं. And the last point, an environment should be created that compels every Indian has to work with responsibility toward the protection of forest. एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे सारे लोग है ना एनवायरनमेंट को बचाना अपनी जिम्मेदारी समझें. ठीक है, अगर हम लोग अगर नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो नेचर भी बदला ले ही लेता है ना. हमने नेचर की बहुत ऐसी तैसी की है तो नेचर ने भी हमको कोरोना वायरस दे दिया और कहा भुगतो. ठीक है, सो यू कैन सी, टू कट ए ट्री इज टू किल अ मैन. मान लो ये एक पेड़ है, उसको एक इंसान के समान बताया गया है.
कटिंग अ ट्री लेड टू किलिंग लाइव्स। और उसने हमने देख रहे हैं कि वो मतलब जो ट्री है उसको बहुत पेन हो रहा है जब उसको काटा गया। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारे अंदर जान होती है वैसे उनके अंदर भी जान होती है। एंड जो ट्री होते हैं वो भी हमारी तरह ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हमारी तरह ही पानी कंज्यूम करते हैं, खाना भी कंज्यूम करते हैं, बट वो फिर साइंस का टॉपिक हो जाएगा एंड आपको आगे साइंस के क्लासों में समझाया जाएगा। ओके। एंड नाउ जाते जाते आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है। मेक अ लिस्ट ऑफ द 10 ट्री अवेलेबल इन योर सिटी और अ विलेज एंड फाइंड हाउ यूजफुल दे आर एज द मेडिसिन एंड इन रेगुलर लाइफ। आपके आसपास जो ट्री ग्रो होते हैं आपको उसे 10 ट्रीज के नाम लिखने हैं और वो आपको क्या क्या काम में आते हैं आपको उसकी लिस्ट बनानी है। वेल, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जंगली जानवरों के बारे में हम लोग इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम। टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय एवरीवन।